Today's I have taken a very interesting topic, divided by 0. What will be the answer if any number divided by 0? So it's a so interesting question because most of the students say, write in the comments, sir, how can we prove 1 equals to 2 and 2 equals to 10? Because there are a lot of videos uploaded in a YouTube that you can see 1 equals to 2 equals to 10, but I am saying, listen, it can be right. It can be right if any number divide by 0. अगर कोई भी नंबर 0 से डिवाइड का आंसर अगर आपको पता है तो ये सब चीज़ें पॉसिबल है। एक जल्दी से छोटा सा एग्जांपल लेके के बता दें। यूट्यूब पर आपने देखे हैं कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कम्स टू मी एंड आस्क, सर हाउ कैन बी प्रूव 1 इक्वल्स टू 2 एंड 2 इक्वल्स टू 3 इक्वल्स, बिकॉज कई सारे वीडियोज़ हैं जो यूट्यूब पर लोगों ने अपलोड किए हैं और बच्चे देखते हैं उनको और बहुत ही प्राउडली आते हैं कि सर 1 इक्वल्स टू 2 प्रूफ सर आप करके मतलब दिखा दीजिए। सो ये चीज़ें कैसे पॉसिबल, एक पहले मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि ये कैसे, हाउ इट कम फ्रॉम। ओके, फिर उसके बाद देखते हैं कि डिवाइड बाई 0 क्यों पॉसिबल नहीं है, क्या ऐसा है, सब देखेंगे आज। बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है ये। तो देखते हैं, जैसे इफ़ सपोज आई एम टेकिंग इफ़ a equals to b, मैंने लेट कर लिया। ओके, एंड वी नो वेरी वेल इफ सपोज आई कैन राइट एनी नंबर इन बोथ साइड LHS एंड RHS, सो आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई बाई b, इट विल बी ab and it will be b square, and we can subtract any number in LHS and RHS, तो कोई भी इस पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो नाउ ab minus b square and here again a square. Suppose I am going to write a square, here also write a square, ये a square कैंसिल होगा, एक b से एक b कैंसिल होगा, आ गया हमारे पास वही। नाउ टेक a कॉमन, इट विल बी b माइनस a, and it is making an identity b square minus a square, it will be b plus a and b minus a. Now b minus a cancel out and a equals to b plus a, एंड हमने लेट किया था a इक्वल्स टू b, तो b को हम a से रिप्लेस कर सकते हैं, इट विल बी a प्लस a इक्वल्स टू 2a, a कैंसिल आउट, 1 इक्वल्स टू 2 प्रूव्ड। और कोई एरर भी नहीं है, लेकिन इसमें एरर है सर, इसमें एरर है बिकॉज b माइनस a एंड b माइनस a कैन बी कैंसिल आउट। हम लोगों ने ऐसे सॉल्व किए, बट व्हाट इज b माइनस a, because a equals to b, we can replace b by a and we can also replace a by b. Suppose here I am writing a instead of b, it will be a minus a will be 0, means अगर हमने b माइनस a से b माइनस a कैंसिल किया है, इसका मीन्स हमने 0 से 0 को कैंसिल किया है, मीन्स हमने 0 से 0 को कैंसिल किया है। और आज तक नाउ टिल कोई 0 बाई 0 का आंसर किसी को नहीं पता है, इसका सब लोग आंसर नॉट डिफाइंड बोलते हैं। सो ये मैथमेटिकली एकदम रॉन्ग है, 0 से 0 को हम लोग कट कर ही नहीं सकते। तो इस तरीके से अगर ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है अगर 0 अपॉन 0 या फिर किसी भी नंबर में अगर 0 का डिवाइड करें और अगर आंसर आता है तो सर ये सब कुछ पॉसिबल है कि 1/2 या 2/3 जो भी कुछ है। तो आज देखते हैं कि क्यों ऐसा है, कि वाई एनी नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाई 0, क्यों इसका आंसर आता है नॉट डिफाइंड। तो उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ हम लोग सीखते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एंड सपोज आई एम गोइंग टू राइट 2 into 3, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट। मोस्ट ऑफ द students mugs the tables 2 into 3 equals to 6, but they don't know the reason behind it. It's 6 comes from, because the meaning of multiplication is nothing, repeated addition, the meaning of multiplication. And the multiplication is a term of math, and in a general language we say times, multiply also times, 2 times 3 means 2 into 3. What is the meaning of that? 2 times 3 plus 3 means repeated addition. Multiplication is nothing, it is no existence of multiplication. Is the advanced version, pro version you can say of addition, repeated addition. So it will 6. And suppose I am writing 3 into 4, what is the meaning of that? 3 times 4 means 4 plus 4 plus 4 equals to 12, or 3
plus 3 equals to also 2, because someone can also write in this way, commutative property apply होगी ना यहाँ पे, a into b, b into a. तो this is the meaning of multiplication, repeated at your same here. Suppose I am going to write 12 upon 3. What is the meaning of that? Suppose I am going to write 4. It comes from 4. It comes from, देखते हैं, repeated subtraction. Meaning of division is repeated subtraction. Means, meaning of that, how many 3's are required? Listen carefully. How many 3's are required to make 12? कितने 3 हमको चाहिए जिससे हमारा 12 बन जाए? तो इसका आंसर क्या होगा? 4. How many times? How many 3's are required to make 12? Means 3 plus 3 plus 3 plus 3. हमको कितने 3 चाहिए? 4 3 चाहिए, जिससे हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा. डिवाइड करने पे मतलब कितने आपको 3 की रिक्वायरमेंट है, जिससे इसका आंसर क्या आ जाएगा? हमारे पास 4 आ जाएगा. क्लियर है? क्लियर है? या फिर या हम इसको ऐसे भी, इसको डिवाइड को ऐसे भी समझते हैं, 12 में अगर मैंने 3 का डिवाइड किया तो एक्चुअली में हमने किया गया 4 को 3 बार माइनस किया, तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन हमने किया. क्यों? कितने हमको, हाउ मैनी 3's आर रिक्वायर्ड? 4. हाउ मैनी 3's आर रिक्वायर्ड टू मेक 4? तो इससे इसका आंसर क्या आ जाए? 0 आ जाएगा. मतलब इसका जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा? 0 आएगा. अगर मैं इसमें ये प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ, how many 3's are required to make 12, your answer will be 4. Now I am going to ask 12 upon 0. How many, same question I am asking, how many zeros are required to make 12? Tell me the answer. How many zeros are required? If you add 0 0 forever, still you never get 12. आप 0 को forever ऐड करते जाइए, लेकिन कभी भी आपको 12 नहीं मिलेगा. So answer is not defined, because same process I am going to apply. How many zeros are needed? How many zeros are required to make 12? 0 plus 0 plus 0, you are going to add forever, still never get 12. Yes or no? So 0 0 0 up to so on infinite times, means answer is not defined. You can't say anything, so it is not possible. But I am writing 0 upon 81. How many 81 are required? How many 81 are required to get 0? मुझे कितने 81 चाहिए जिससे 0 आ जाए? Nothing. क्योंकि 81 तो खुद में एक नंबर. आप खुद, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ, how many 81's are required to make 0? Your answer will be nothing, and nothing means 0. So the answer is 0 upon 81 and 0 upon 12 equals to 0. But suppose 0 upon 0, how many zeros are, यहाँ पे confusion, how many zeros are required to make 0? How many zeros are required to make 0? तो इस पे अभी भी रिसर्च चल रही है. नॉट डिफाइन. अगर ये सब चीज़ें पॉसिबल हो गई, 0 का डिवाइड अगर आपने 0 में किया, या 0 का डिवाइड आपने किसी भी नंबर में किया, अगर उसका आंसर अगर आ जाता है, इन फ्यूचर अगर आता है, तो ये सब चीज़ें पॉसिबल हो जाएंगी. सर 1/2, 2/3, ये सब चीज़ पॉसिबल हो जाएंगी, क्योंकि वो अगेंस्ट द, जो मैथ्स का जो कंसेप्ट हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है उसके एकदम अगेंस्ट हो जाएगा. इसीलिए इसको सिन बोल देते हैं. मैथमेटिकली सिन है ये. एक्सेप्शनल केस है कि भाई इसके आंसर पे अभी रिसर्च चल रहा है. लोगों ने बहुत किया रिसर्च. इवन मैंने जो थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ी है, रामानुजन जी, उन्होंने भी इस पर किया था. पर फाइनली फिर यही कहा कि अगर इसका आंसर बताते हैं तो मैथ्स के जो प्रीवियस जितना सारा हम लोग पढ़ा वो सब उसके अगेंस्ट हो जाएगा, फिर वो सब चीज़ें हो जाएगी. तो बहुत से बच्चे यूट्यूब पर देखते सर ये तो मैंने कहा ये बच्चों के पास एक गलत इन्फॉर्मेशन का स्प्रेडेशन हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए मैंने कहा एक वीडियो अपलोड करता हूँ, इसलिए कि इवन बच्चों को ये पता तो लगे. क्योंकि अब छोटे बच्चे 8th क्लास में, 9th में, उनको बड़ा मजा है कि सर 1 इक्वल, और यूट्यूब पर लोगों के ऐसे काफ़ी वीडियोज़ पढ़े, लेकिन रीज़न नहीं बताया किसी ने क्यों ऐसा है कि ये 1 इक्वल 2 कैसे प्रूफ हो रहा है. तो ये डिवाइड का जो कंसेप्ट है वो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है, कुछ नहीं है. आप उसको देखिए, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से आया, मल्टीप्लिकेशन, रिपीटेड एडिशन से आया. सेम को जब अगर आप डिवाइड अच्छे से करते तो आपको डिवाइड ऐसे नहीं सिखाया जाएगा कि 3 4 जा 12, बिल्कुल नहीं. आपसे पहला क्वेश्चन ये होगा, हाउ मैनी 3's आर रिक्वायर्ड टू मेक 12, तब आप बोलेंगे 4. ठीक है. तो इस तरीके से सेम क्वेश्चन अगर 12/0 पे हम लोग हाउ मैनी zeros आर रिक्वायर्ड टू मेक 12, so if you are going to add forever 0, still never get 12 or 81 something whatever. so ये जो है हमारा कि इसलिए 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, इसलिए पॉसिबल नहीं हो पाता है. तो आई थॉट
I have to upload that type of video. It will be help to those students, those who are thinking about how it can be proven equals to 2 equals to 3. Okay guys,